भोपाल ये चलते हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हैं। उद्घाटन विधान परिषद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव आमंत्रित करूंगा कि वो इस प्रोग्राम के पीछे, इस कार्यक्रम और छात्र संसद के पीछे अपने विचार व्यक्त करे कि इसका गहन और गठन कैसे हुआ था। तालियों के साथ विश्वजीत चोपड़े जी का स्वागत। हिरण्यगर्भे जगत अंबिके मातृभूमि भारत भूमि तेरी सदा ही जय हो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भोपाल मध्य प्रदेश के इस पावन भूमि पर इस विधान भवन में एसएसएफ और कलाइडो होप द्वारा आयोजित संसद यूथ पार्लियामेंट 2026 के ओपनिंग सेरेमनी में प्रमुख उपस्थिति से उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ऑनरेबल श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के सम्माननीय सभापति और सबके लोकप्रिय ऑनरेबल श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, एमपी की जानी मानी हस्ती, प्रसिद्ध उद्योगपति जिनके सहयोग के बिना हम ये कार्यक्रम भोपाल में करवा ही नहीं पाते, हमें ये साहस ही नहीं आता। दिलीप बिल्डकॉन के संस्थापक ऑनरेबल श्री दिलीप सूर्यवंशी, एनएसएफ की डायरेक्टर मेरी ताई देवयानी चोपड़े जी, and all my delegates. It gives me an immense pleasure and even a greater sense of responsibility to welcome each one of you to Bhopal. Bhopal, the city of lakes. Bhopal, the city of Nawabs. Bhopal, a place where time stops. Bhopal, which is called the luxury of time of India. And some of you may ask, why Bhopal? तो इसका उत्तर मैं एक शायरी से देना चाहूंगा। आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशिया बसाने की। Because sometimes progress demands to leave your comfort and build something bigger than that you have already built. Last year हमने 150 delegates को नागपुर के विधान भवन में ग्रीन कारपेट पे संसद यूथ पार्लियामेंट 1 में पूरे इंडिया से बुलाया था और वो बहुत सक्सेसफुल एक इवेंट था। It was our first major step. We had participants, debates, committees, sleepless nights, disagreements. But at the end of the day, we had an incredible spirit of democracy. Today, as I look around, I do not see 84 delegates, but I see young Indians who have chosen to participate rather than merely observing. And the distinction between those two matters. Because democracy cannot survive on spectators. Democracy needs participation. India is one of the youngest nations, but being young is not great by itself. Youth is a potential, and potential means nothing unless it's given a direction. As Napoleon said, ability is nothing without opportunity, and I believe in that deeply. There are thousands of young people in this country with extraordinary ideas. They have ability, they have ambition, they have energy, but what they often lack is opportunity. And Sansad Youth Parliament is a platform where we give opportunity to the youth. आप लोगों ने बचपन में कलाइडोस्कोप तो देखा ही होगा जिसमें अलग अलग पीसेस रहते हैं। So a kaleidoscope contains different pieces. With every turn, the same pieces form an entirely new pattern. These pieces remain the same, but the perspective changes with every turn, and a new possibility emerges. That's what our NGO Kaleido Hope represents. Our society is made of countless perspectives, different people, different experiences, different culture, and different ideas and different dreams. And we want to bring all the perspectives together with our motto, Kaleido Hope, igniting hope of humanity. Because hope itself is not a feeling, it's a responsibility to ignite in action. और जो अभी हमारा यूथ पार्लियामेंट हो रहा है, ये भारत के 79 इंडिपेंडेंस डे के करीब हो रहा है। भारत का वर्णन अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषा में करूं तो कुछ इस तरह करूंगा। आप लोग भी अगर उनके शब्द जानते हैं तो मुझे ज्वाइन कीजिए। भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह अभिनंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद जब हमारी अस्थियां गंगा से बहती हुई जाएगी और उस पर कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की
धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विचार मुझसे साझा किए और इस संसद में आज हम सब उपस्थित हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये फाउंडर्स डे के कारण हो रहा है और उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप तालियों के गड़गड़ाहट के साथ श्री वैशाली चोपड़े जी जो साकार दृष्टि फाउंडेशन के फाउंडर है उनका भी स्वागत करें और सम्मानित करें। अब मैं उस व्यक्तित्व का स्वागत करना चाहूंगा जिनका सार्वजनिक जीवन और सांसदीय अनुभव कई दशकों में विस्तृत है। मध्य प्रदेश और भारत सरकार में अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं सर। एक अनुभवी जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ सांसदीय व्यक्ति श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, सर आपने इस गरिमामय उपस्थिति से इस संसद को साझा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा श्री दिव्यानी चोपड़ी जी और विश्वजीत चोपड़े सर को फेलिसिटेट करें और उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इवेंट में हैं। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम अध्यक्ष जी का भी स्वागत करें। अब वो क्षण जिसका हम सभी को विशेष रूप से इंतजार रहा था, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी एक अनुभवी जननेता और सार्वजनिक जीवन में अपने योगदान के लिए सब जाने जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व को स्वागत करने में हम सभी को गौरव महसूस होता है और अपने बिजी शेड्यूल में से सर ने टाइम निकाला, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर आप हमारे पार्लियामेंट में आए। मैं अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत करना चाहूंगा और अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का। इसी के साथ एक सुकून है भोपाल जी से दत्तात्रेय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। एक कवि अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून